Yes, in the last lecture, uh, which topic we had covered? I think question. Yes, क्या cover किया हम लोग ने last lecture में? Hmm? In the last lecture, which topic we had covered? Students, याद है किसी को? Hmm? In the last lecture, which topic we had covered, students? Hmm? Shoaib. Yes, yes, चलो. हम याद नहीं आ याद. Okay. In the last lecture, we had covered the assemblies का revision हम लोगों ने किया. Okay, assembly का revision दिखाया. Then I told you which practicals you have to write. Okay, and which assignments, question banks you have to write. Okay, जो question bank के पास assignment आपको लिखना है in the notebook and practicals you have to perform. Okay, जो practical list में जो practicals मैंने बताया वो practicals आपको perform करना है. Okay, then right and right line का difference that also we had covered in the last lecture. ठीक है, assemblies किया. Now उसके बाद I want to start unit 2, but some topics are there कि जो थोड़े बाकी है, 2 to 3 topics. Okay, interface is remaining, interface बाकी है, then switch case भी बाकी है. ठीक है, switch case is also remaining, interface is remaining, and delegates का एक programs हम लोगों ने practical नहीं किया. So today we will perform that delegates practicals. Okay, delegates का practical हमने perform नहीं किया ना, वो बाकी है हमारा. So today ये जो remaining topics है we will complete, and from tomorrow we will start the unit 2. Okay, yes, now switch case. What is a switch case? Okay, what is the use of switch case statement? What is the use of switch case statement? What is the use of switch case statement? कहाँ पे use करते हो switch case statement? In C, C++. Okay, but what is the use of switch case statement? क्या use है? क्या use है switch case statement का? Yes, बताओ चलो. What is the use of switch case statement? When you will use this statement, कब use करोगे आप ये statement? Which type of condition you want to check कि तब switch case आप use करोगे? यूज किया है, यस और नो? प्रोग्राम्स किया है स्विच केस का इसके पहले, यस और नो? स्विच केस यूज करके प्रोग्राम्स किया है कि नहीं? अभी याद नहीं तो ठीक, किया है ना? ओके, तो what is the use of switch case statement? The switch case statement allows a variable to be tested for equality against a list of values. Okay, for example, if you want to provide the choices to the users, okay, user को choices देना है. Okay, उसमें से user को बोलना है कि select the one of the input from this choices. At that time, you can use the switch case statement. Each value is called a case. Okay, and the variable being switch on is checked for each switch case. Okay, आप क्या करोगे? If you want to uh, scan the input from the user, but from particular input जो क्या बोल सकते choices देना है. ठीक है, from the choices में से आपको यूजर को बोलना है select one of the input from these choices. ठीक है, at that time आप क्या यूज करोगे? switch case statement. ठीक है, तो switch case के लिए when user will choose one of the values or inputs from your choices में से, तो according to that choices the statement will be printed. Okay, तो जो स्टेटमेंट है दैट आप कहाँ पे लिखोगे? केस में लिखोगे. ठीक है, एंड स्विच जो यूजर का इनपुट जो है दैट यू विल पास इनटू द स्विच ब्लॉक में पास करोगे. ठीक है, तो दैट इज द यूजर स्विच केस स्टेटमेंट. व्हेन यू वांट टू allow the user, okay, या तो when you want to give the choices to your users,
ओके आपको यूजर को चॉइस देना है कि आपको इसमें से सिलेक्ट करना है इनपुट जो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप प्रोग्राम्स करते थे मंडे ट्यूसडे, सिलेक्ट 1 to 7 एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7, आप ऐसे ऑप्शंस देते थे यूजर को, ऐसे नहीं बोलते थे कि कोई भी चूज करो। अगर कोई भी चूज किया तो बाय डिफॉल्ट जो आप प्रिंट करवाते थे दैट विल बी प्रिंटेड होता था, ठीक है। बट यूजर को आप क्या इंस्ट्रक्ट करते थे एट द टाइम ऑफ इनपुट के टाइम पे, सिलेक्ट एनी वन इनपुट फ्रॉम दिस चॉइसेस, ठीक है, ऐसे आप करते थे। तो जब यूजर को चॉइस देना है वो इनपुट के लिए, एट दैट टाइम यू कैन यूज द स्विच केस स्टेटमेंट। क्लियर, आप क्या यूज करोगे, स्विच केस स्टेटमेंट। तो उसका यूज जो है दैट इज सेम, लॉजिक इज आल्सो सेम, ओनली द जो उसका सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स इज डिफरेंट, ठीक है। सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, कोई चेंज नहीं है। जो आपने सी लैंग्वेज में किया सेम सिंटैक्स इज हियर। स्विच, SWITCH, स्विच, स्विच इज अ कीवर्ड है, एज इट इज लिखना है, ओपन द ब्रैकेट, एक्सप्रेशन जो यूजर इनपुट पास किया होगा उसका, यूजर का इनपुट यू विल पास हियर एज अ एक्सप्रेशन, ओके, ओपन द ब्रैकेट, देन केस, ओके। अगर आपने यूजर को 7 इनपुट्स, 7 चॉइसेस इफ यू आर गिविंग टू द यूजर, तो 7 चॉइसेस के लिए यू हैव टू राइट द 7 केसेस। क्या लिखना पड़ेगा आपको, 7 केसेस लिखना पड़ेगा। तो जितना इनपुट्स आप यूजर को, जितना चॉइसेस यू आर गिविंग, उतना आपको क्या देना है, केसेस यू हैव टू राइट हियर, ठीक है। केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1, देन कॉलम करना है, उसमें क्या स्टेटमेंट लिखना है, ब्रेक। देन सेकंड एक्सप्रेशन है, अगर यूजर चूज कर रहा है, इफ यूजर चॉइस इज द सेकंड चॉइस, तो आपको उसमें क्या प्रिंट करवाना है, दैट, ठीक है, ऐसे करके ब्रेक। देन ओके, ब्रेक आप पहले भी लिखते थे, ब्रेक मतलब क्या, टू ब्रेक द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वो जो है उसको उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द स्विच केस हो जाएगा। एंड द लास्ट इज डिफॉल्ट, ओके, द लास्ट इज डिफॉल्ट, ओके, ऑप्शनल, जो अगर इसमें से कोई चॉइस नहीं कर रहा है, इफ द यूजर ने जो ऑप्शंस आपने दिया है उसमें से यूजर विल नॉट चॉइस एनी वन ऑफ द ऑप्शन, तो आप उसको क्या करोगे, डिफॉल्ट में जो होगा दैट स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड। ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स, डिफॉल्ट ऑप्शनल है, डिफॉल्ट ऑप्शनल है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर, द एक्सप्रेशन यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट मस्ट, ठीक है, ये हम लोग प्रोग्राम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ऑलरेडी आपको पता है कि व्हाट इज स्विच केस स्टेटमेंट। Yes. When a break statement is reached, the switch terminates and flow of control jumps to the next line of the following switch statement. Not every case needs to contain a break statement. Okay. Not every case needs to contain break. If no break appears, then it will raise a compile time error. Okay. Not every case needs to contain a break. With example हम लोग देखते हैं, a switch statement can have an optional default case which must appear at the end of the switch. The default case can be used for programming a task when none of the case is true, ठीक है, none of the case, अगर कोई according to हमारे उसके हिसाब से वो इनपुट नहीं डाल रहा है यूजर, तो वो बाय डिफॉल्ट जो लिखा होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये एक स्मॉल एग्जांपल दिया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, कैरेक्टर ग्रेड करके बी, यहाँ पे ये लोग क्या करवा रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है बी, ठीक है। यू कैन आस्क द यूजर, आप स्कैन करवा सकते हो, ओके, एंटर एनी ग्रेड, ओके, एंटर एनी ग्रेड, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर एनी ग्रेड, एक वेरिएबल ले लो कैरेक्टर करके, ग्रेड करके, देन उसको स्कैन करवा दो। हाउ टू स्कैन, इन द कंसोल डॉट रीड लाइन, ओके, क्या लिखोगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, तो उससे क्या होगा, तो आपका यूजर का इनपुट जो है दैट विल बी स्कैन। देन यहाँ पे पास करोगे ग्रेड, क्या बोली समझ में आया, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे आर गिवन असाइनिंग सम वैल्यू टू द ग्रेड वेरिएबल, ओके, ग्रेड वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया है, आप ये वैल्यू यूजर से इनपुट करवा सकते हो, यू कैन इनपुट दिस वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ओके। कैसे लिखोगे इसको, कैरेक्टर ग्रेड डिफाइन करोगे, वेरिएबल ग्रेड डिफाइन करोगे, देन कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर एनी ग्रेड, कंसोल डॉट, देन ग्रेड इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ऐसे करोगे तो आप यूजर से जो वैल्यू दैट स्कैन हो जाएगा। देन स्विच ग्रेड, ठीक है, क्या पास किया, ग्रेड वेरिएबल जो है वो पास किया, चेक करेगा, अगर ए है तो क्या करना है, बी है तो क्या करना है, सी है तो क्या, बी एंड सी, अगर बी एंड सी है तो वेल डन आपको प्रिंट करवाना है। देन ब्रेक, देन डी, डी अगर किसी ने टाइप किया तो यू पास, देन ब्रेक, एफ तो बेटर ट्राई अगेन, जो ऑप्शंस आपको देना, तो यू कैन राइट लाइक दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दो केसेस के लिए इफ यू हैव टू प्रिंट सेम लाइन, आपको सेम लाइन प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप ये जो ऐसे फॉर एग्जांपल किसी ने सी एंटर किया, तो सी के लिए भी दिस लाइन विल बी प्रिंटेड, ठीक है।
सी के लिए ये लाइन भी प्रिंट होगा। अगर आपको बी है तो बी के लिए भी ये सेम स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड। तो इफ यू वांट टू प्रिंट सेम स्टेटमेंट फॉर बोथ टू और मोर केसेस या तो वन और मोर केसेस के लिए, तो यू कैन राइट लाइक दिस, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा याद रखो, व्हेन यू विल डू प्रैक्टिकल्स तो आपको याद हो जाएगा। डी तो क्या है, एफ तो क्या है, सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। बेटर अगर एफ है तो क्या है, ब्रेक, देन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड ग्रेड। ओके, इनवैलिड ग्रेड, कंसोल डॉट राइट लाइन योर ग्रेड इज, ग्रेड आपका ग्रेड क्या है जो इसमें आपने पास किया होगा, दैट वैल्यू, तो बी, योर ग्रेड इज बी। तो यहाँ पे हमारा चॉइस क्या दिया था, बी दिया था। ठीक है, तो वेल डन, बी में क्या है, the case is B, when the case is B है तो क्या प्रिंट करवाना है, well done। well done तो प्रिंट होगा, प्लस लास्ट में ब्रेक आउटसाइड द ब्रैकेट वी आर रिटर्न द योर ग्रेड इज, तो वो भी तो प्रिंट होगा, योर ग्रेड इज, तो दिस इज द आउटपुट। ओके, कुछ न्यू नहीं है ना, नथिंग इज न्यू इन दिस स्विच केस टॉपिक, आप ऑलरेडी आप कर चुके हो, वही चीज है। ये भी आप ऐसे भी करते थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे नहीं कि इन दिस सी शार्प ओनली यू कैन डू लाइक दिस। ये सी में भी, सी प्लस प्लस में भी है कि इफ यू वांट टू प्रिंट द सेम स्टेटमेंट फॉर मोर देन वन केसेस, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ न्यू कंसेप्ट नहीं है, दिस इज ऑल्सो वही है, कॉमन ही है। ठीक है, कुछ न्यू नहीं है। तो ये जो हो गया स्विच केस, तो आपको वन प्रोग्राम इज प्रैक्टिकल लिस्ट के प्रोग्राम स्विच केस से प्रोग्राम करना है आपको। तो नाउ यू कैन डू द प्रैक्टिकल, सब कुछ न्यू है नहीं, सेम ही है, ओनली कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन जो है वो, बाकी जो सिंटेक्स स्विच का सिंटेक्स भी फुल सेम ही है। क्लियर? ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम करोगे। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू हाउ टू राइट प्रैक्टिकल्स, which practicals you have to complete, and which questions you have to write, okay, in your assignments book। तो मुझे ये सब चीज कंप्लीट चाहिए। सैटरडे, नाउ दिस सैटरडे, ओके, अब जो कमिंग सैटरडे है, और सैटरडे तक मुझे सारे प्रैक्टिकल्स जो मैंने बताया दैट आई वांट टू कंप्लीट। ठीक है, इफ यू हैव दिस सिस्टम, सिस्टम है, डॉटनेट इंस्टॉल करो, रन करो, एंड सोर्स कोड जो है, प्रोग्राम जो, वो कॉपी करो वर्ड में, एंड आपका क्या बोलते हैं, आउटपुट है उसका प्रिंट स्क्रीन लेके उसके नीचे अटैच करो। ओके, वर्ड फाइल बनाओ, एक ही वर्ड फाइल बनाओ सारे प्रैक्टिकल्स के लिए, देन लास्ट में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आपको यू हैव टू सबमिट द पीडीएफ फाइल एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, सेकंड, अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है तो दे हैव टू राइट इन योर नोटबुक। किसमें लिखना है, नोटबुक में लिखना है प्रैक्टिकल्स। असाइनमेंट्स तो लिखना ही है सबको, प्लस प्रैक्टिकल्स भी लिखना है नोटबुक में, अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है तो। ओके, बट मुझे कंप्लीट चाहिए, ये सैटरडे कंप्लीट चाहिए। ओके, क्लियर? यस, ऑल दी प्रोग्राम्स, जो जो भी प्रोग्राम्स है, न्यू प्रोग्राम्स है जो मैंने आपको रन करके दिखाए इन द कंसोल एप्लीकेशंस में। ठीक है, हर एक बेसिक बेसिक दिखाए, जो बाकी प्रैक्टिकल्स मैंने बताया आपको वैसे करना है। फोर इच इज न्यू फॉर यू, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। देन और क्या था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग फंक्शंस, दैट इज आल्सो न्यू, तो वो भी हम लोगों ने कवर किया इन द प्रैक्टिकल्स में। तो दोस प्रैक्टिकल्स आर रेडी। ठीक है, आपको जस्ट वो देख के उसको लिखना है, तो वो तो रेडी ही है। बाकी जो है कि इनपुट करो यूजर से, उसका मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, देन फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर्स, फैक्टोरियल्स, ऑल आर यू हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लैंग्वेजेस में, आप लोगों ने किया हुआ है। तो सेम आपको करना है, बट किसमें करना है, इन द कंसोल एप्लीकेशंस में आपको करना है। ठीक है, तो दिस सैटरडे कंप्लीट करो प्रैक्टिकल 1 एंड 2 का, मैंने आपको दिखाया कौन से कंप्लीट करना है प्लीज। एंड सैटरडे, सैटरडे तक कंप्लीट करो, मंडे मुझे सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना है आई विल टेल यू। ओके, बट आई वांट प्रैक्टिकल्स, एंड प्रैक्टिकल्स पहले करो, असाइनमेंट्स थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बैंक्स में, तो वो नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट करो। ठीक है, यस, द नेक्स्ट इज इंटरफेस। ओके, द नेक्स्ट इज इंटरफेसेस। व्हाट इज इंटरफेस स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटरफेस, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज इंटरफेस? व्हाट इज इंटरफेस? चलो जल्दी से बताओ, मुझे डेलीगेट्स का प्रोग्राम करना है अभी। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस क्या है? हम्म
Have you used interface? Yes, students, please be active in the class. This is practical subjects, theory subjects नहीं है. मुझे फटाफट आंसर आने चाहिए. जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, यस मैम ये आंसर, यस मैम ये आंसर है. ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट. इंटरफेस, इनहेरिटेंस, हाँ, ऑब्जेक्ट, क्लास, स्विच केस, लूप, इफ, ऑल आर द कॉमन कंसेप्ट. हर एक लैंग्वेजेस में आता है ये. ऐसे रहोगे वाइवा में, ऐसे बैठोगे. अरबाज ने तो बोलना ही छोड़ दिया है. अरबाज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना अरबाज. नशरा, ओएस, सूर्या, ये सेमेस्टर में ऑल स्टूडेंट्स ऐसे ना वो पूरा साइलेंट हो गए. क्यों? समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट इज द इश्यू? समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है? आंसर नहीं देना है. हुँ? अगर नहीं रिप्लाई करोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा? कोई बात नहीं, चलो. व्हाट इज इंटरफेस? तो मैं अपने तरीके से फिर आई विल कवर द सिलेबस. ओके, फिर बोलना मत. अगर आपको डॉट नेट में आगे नहीं जाना है, डॉट नेट में प्रोग्राम्स नहीं करना है, प्रोजेक्ट नहीं करना है, अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में जब प्रोजेक्ट के लिए बैठोगे, प्रोजेक्ट करने बैठोगे, जब कोडिंग करने जाओगे डॉट नेट में, अगर तब समझ में नहीं आएगा तो बोलना मत कि मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है. ओके, बिकॉज दिस इज योर बेस फॉर योर प्रोजेक्ट के लिए. बेस है ये सब्जेक्ट. अगर कोई डॉट नेट में प्रोग्राम एप्लीकेशन या तो वेबसाइट्स बनाना चाहता है, उसके लिए दिस इज द मेन. Interface in C# is a blueprint of class. It is like abstract class because all the methods which are declared inside the interface are abstract methods. Okay, all the methods जो हम लोग declare करते हैं in the interface are abstract methods. It cannot have method body and cannot be instantiated. Okay, what is the abstract मतलब क्या? Declaration उसका नहीं होगा. Only उसका definition दिया जाएगा methods का. ठीक है, क्लियर? उसका जो बॉडी जो है, मेथड्स का जो बॉडी, इट कैन नॉट बी दैट. ठीक है, इट इज यूज्ड टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस. जो इंटरफेस जो है, इंटरफेस इज यूज्ड टू अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस. जो डॉट नेट है, सॉरी सी शार्प लैंग्वेज है, सी शार्प लैंग्वेज इज नॉट सपोर्टेड मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय सी शार्प लैंग्वेज. इसको ओवरकम करने के लिए इंटरफेस इज यूज्ड. ओके, ये मैंने आपको बताया था. इंटरफेस इज यूज्ड. व्हाट इज इंटरफेस? इन द इंटरफेस द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट. ओके, इंटरफेस में मेथड्स क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा. अगर वो मेथड्स को हमको यूज करना है, ठीक है, तो वी हैव टू inherit it. Okay, in the subclass, its implementation must be provided by a class or structure. The class or structure which implements the interface must provide the implementation of all the methods declared inside the interface. We have to do implementation of this of the methods of interfaces. ठीक है, why? Because the methods कैसा है? Abstract है. Interface में जो methods है, methods are abstract methods. Example क्या हुआ यहाँ पे? See the example of interface which has draw method. Its implementation is provided by two classes, rectangle and. देखते हैं हम लोग which program. Okay, see here one interface is created. Okay, public interface drawable. Drawable is the name of the interface. Okay, here we are creating the one interface. How to create interface? Interface is a keyword. Write the interface and give the name of interface and make it public. Why public? Because उसका जो methods है, methods are abstract. Abstract methods है, public है, तो ही उसको हम लोग कोई और सब क्लास में और अनदर क्लास में वी कैन इम्प्लीमेंट इट. अगर वो पब्लिक नहीं है, अगर इसको हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओनली इंटरफेस रखेंगे प्राइवेट, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? प्राइवेट. तो प्राइवेट है तो वी कैन नॉट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इन द अनदर क्लास. ओके, सो इट मस्ट बी पब्लिक होना चाहिए वो इंटरफेस. सॉरी, पब्लिक इंटरफेस. Give the name of interface. In interface का name है drawable, and within this interface one method is there, that is abstract method. Why abstract method? Void draw. Okay, void draw. Draw is a
एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट इज अ मेथड। व्हाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों लग रहा है आपको? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है? व्हाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? ड्रॉ इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कैसे समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? क्या देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? बताओ मुझे। जो अगर आप नहीं बताओगे तो मैं आगे आगे नहीं जाऊंगी, ठीक है? आई विल नॉट स्टार्ट दिस नेक्स्ट टॉपिक, अगर जब तक मुझे इसका आंसर नहीं दोगे तो। व्हाई ड्रॉ मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट? यहाँ पे आपको कैसे समझ में आ रहा है कि ये मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है? किस कौन से एंगल से आपको लग रहा है कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मैम ने बोला इसीलिए दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना? यस, चलो बताओ, ट्राई तो करो। रॉन्ग है राइट है ऐसा नहीं कि मुझे राइट ही आंसर चाहिए। कुछ तो ट्राई करो जो आपको समझ में आ रहा है, जो देख के आपको समझ में आ रहा है। जस्ट गिव द आंसर। मैंने कभी नहीं बोला कि आई वांट ओनली करेक्ट आंसर। मैंने ऐसे ही बोला कि मुझे ओनली आंसर चाहिए। अगर वो रॉन्ग है राइट है, रॉन्ग होगा तो आई विल करेक्ट इट, मैं उसको करेक्ट करूंगी। चलो बताओ। ये शुएब, कीर्ति, वाई ये मेथड जो है आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है? हम लोग बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस हैज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस हैज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम लोग बार बार बोलते हैं। आपको डेफिनेशन पूछा व्हाट इज इंटरफेस, तो हम लोग बोलते हैं इंटरफेस हैज फाइनल वेरिएबल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो फाइनल वेरिएबल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ओके। फाइनल मतलब क्या? वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। फाइनल का हम लोग चेंज नहीं कर सकते वैल्यू। एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से समझ में आया इस? हम्म, क्यों एब्स्ट्रैक्ट है ये? कृतिका, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। व्हाई? बिकॉज इसका जो हमने क्या किया है, जस्ट मेथड का नाम लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज दिया है, वी हैव ओनली रिटन द मेथड नेम। हमने क्या किया, मेथड डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे उसका जस्ट नाम लिख के उसको छोड़ दिया है। बट मेथड जब हम लोग कॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए उसका पूरा जो स्टेटमेंट, उसका जो लॉजिक, जो फॉर एग्जांपल हम फैक्टोरियल के लिए तो मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब फंक्शन का मेथड का नेम वी आर राइटिंग एंड देन ब्रैकेट ओपन करके उसमें क्या लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, दैट वी हैव राइटिंग। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मेथड का नेम लिखा है, छोड़ दिया है। व्हाट इज यूज ऑफ दिस मेथड? ये मेथड का यूज क्या क्या? व्हेन वी कॉल दिस मेथड तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट क्या होगा उसका कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है देख के ड्रॉ मेथड कॉल करेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग कॉल भी कर दिया तो क्या होगा? व्हाई? क्योंकि उसका तो कुछ डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, ओके। उसको डिफाइन तो नहीं किया, उसका डिफाइन नहीं किया, डेफिनेशन नहीं दिया उसका, ठीक है। तो दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ओनली उसका नेम लिख के छोड़ दिया, ओके। तो इंटरफेस है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस का कौन सा मेथड होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नाउ ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन दी अनदर क्लास में, ओके। तो यहाँ पे वन क्लास, एक क्लास बनाया पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। क्या किया है, ये वी आर मेकिंग दी वन क्लास रेक्टेंगल क्लास हमने बनाया, ठीक है। उसको इनहेरिटेंस, हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है। तो किसको इनहेरिटेंस करें? इंटरफेस को। तो यहाँ पे इंटरफेस का हम लोगों ने नेम किया, दिस इज सिंबल ऑफ इनहेरिटेंस, इम्प्लीमेंट्स करना, ठीक है। हम लोग क्या करें? इम्प्लीमेंट्स करें। तो रेक्टेंगल इज अ क्लास, वो क्लास में हम लोग इंटरफेस को क्या करें? इनहेरिट करें, ठीक है। देन उसमें हमने क्या किया, मेथड नेम जो ऊपर दिया था void, पब्लिक void, जो मेथड का नेम देके छोड़ दिया था, वो मेथड को हम लोग क्या करेंगे इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब मेथड का भी हम लोग डिफाइन डेफिनेशन कहाँ पे देंगे, वेयर वी डिफाइन द मेथड इन दी क्लास में। तो जब हम लोग ड्रॉ मेथड कॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग रेक्टेंगल प्रिंट होगा व्हेन वी कॉल दिस मेथड, ठीक है। जब हम लोग ये मेथड कॉल करेंगे एट दैट टाइम क्या प्रिंट होगा? ड्राइंग रेक्टेंगल्स, ओके। तो हमने क्या किया, जो इंटरफेस था, इंटरफेस में जो मेथड था, दैट मेथड वी हैव इम्प्लीमेंट इन द क्लास, ओके। क्लास में इम्प्लीमेंट किया कैसे? थ्रू द इंटरफेस, ओके। मल्टीपल मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है वो सपोर्ट नहीं करता,
मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन द C# लैंग्वेज, उसके लिए इंटरफेस आया, तो वो इंटरफेस हमने डिक्लेयर किया, मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया, एंड वो मेथड्स को हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इन दी अनदर क्लास में। सेम सेम यू कैन वो मेथड्स जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको आप अनदर और कोई क्लास में भी उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि ओनली वन क्लास में, यू कैन इम्प्लीमेंट दी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नंबर ऑफ क्लासेस पे कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड क्लास एक डिफाइन किया है सर्कल, ठीक है, वो क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है, इंटरफेस को। व्हाई? बिकॉज हमको इंटरफेस का मेथड अगेन वही यूज करना है, वी वांट ओनली यूज दिस मेथड इंटरफेस का, तो हमने किसको इनहेरिट किया, ड्राइवर। व्हाट इज ड्राइवर? इज इंटरफेस, ओके। देन मेथड नेम सेम है, ओके, मेथड नेम सेम है, कंसोल डॉट राइट लाइन ड्राइंग सर्कल, ठीक है, बट ये मेथड को हमने कहाँ पे कॉल किया, वी आर सॉरी कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इन दी सर्कल क्लास में। और ड्रॉ मेथड को हमने और एक कॉल कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, रेक्टेंगल में, मतलब एक इंटरफेस का जो एक मेथड जो है ड्रॉ मेथड, दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन टू क्लासेस, एक रेक्टेंगल क्लासेस एंड सर्कल क्लासेस, ओके, इम्प्लीमेंट किया, रेक्टेंगल क्लास में इम्प्लीमेंट किया, सर्कल क्लास में इम्प्लीमेंट किया, किसको इम्प्लीमेंट किया, मेथड को। व्हाई? बिकॉज ये जो मेथड था दैट इज एक्सट्रैक्ट इन द इंटरफेस में, वो एक्सट्रैक्ट था, क्लियर। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस, यू कैन सी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, बट कैसे वो सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए इंटरफेस से वो मल्टीपल इनहेरिटेंस किया, ठीक है। देन एक मेन क्लास बनाया जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन है, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ड्रॉएबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग, ठीक है, हम लोग क्या करें, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ड्रॉएबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करें, देन डी इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, ओके, जो क्लास जो है वो क्लास को हम पास करवा रहे हैं, एंड देन उसके थ्रू हम लोग क्या करें, वो क्लास का मेथड कॉल करवा रहे हैं, डी इक्वल्स टू न्यू सर्कल, ओके, इंटरफेस जो है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डी, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करवा रहे हैं, क्लास जो है दैट वी हैव कॉलिंग दैट ऑब्जेक्ट, एंड देन दैट यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द मेथड्स, सेम मेथड, इंटरफेस का सेम मेथड्स। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि इंटरफेस जो है वो तो हमने डिक्लेयर किया, उसमें मेथड्स भी हमने एब्स्ट्रैक्ट किया, वो मेथड्स को वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, देन जो मेथड, वो सेम मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, उसको कैसे कॉल करना है, कैसे कॉल करोगे, ठीक है, थ्रू द ऑब्जेक्ट, बट कौन सा ऑब्जेक्ट, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, these concepts are very important for you, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें किया हुआ है, आपको याद नहीं है, आई डोंट नो क्यों याद नहीं है, ये ऐसे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, दिस आर द कॉमन कंसेप्ट। इंटरफेस अगर आप जावा भी करोगे तो आप उसको ऐसे ही कॉल करोगे, समझ में आ रहा है, दिस आर द मेन कंसेप्ट है ये सब, उसको ऐसे भूलना नहीं है, यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस कंसेप्ट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बीएससी का। प्रोग्राम थियरी, ठीक है, चलो थियरी आपको याद नहीं है, ऐसी का याद नहीं है, और जो कोई भी थियरी, अगर आप थियरी नहीं याद है तो चलेगा, बट ऑल आर द प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स, जैसे कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी प्रैक्टिकल रिलेटेड कंसेप्ट, तो एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए। प्रोग्राम्स चलो नहीं, बिना देखे प्रोग्राम्स नहीं कर पा रहे हो अलग बात है, बट यू शुड नो ना व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस में क्या होता है, हम लोग कहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ये सब बेसिक है। मुझे शौक हो रहा है कि आप लोग को ये बेसिक क्यों नहीं पता। और सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ये है कि अगर आपको पता है बट आप लोग नहीं बोल रहे हो, आई डोंट नो कि आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, अगर पता भी है तो ऐसे ब्लैंक बैठोगे तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड तो मुझे आपको क्या डिटेल में पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। अगर आप बोलोगे मैम नहीं पता, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके हम लोग वो डिटेल्स में जाएंगे। देखो, डिसाइड करो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, अदरवाइज कंसेप्ट जो है, अभी भी टाइम है, अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है, समझ में आ रहा है, अभी भी टाइम है, 1 ईयर आपके पास अभी है, यू हैव 1 ईयर फॉर क्लियरिंग ऑल द कंसेप्ट। अगर 2 मंथ्स भी, 1 मंथ भी है, तो 15 डेज भी आप सीरियसली पढ़ लोगे ना तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। चलो जाने दो। नेक्स्ट इज डेलीगेट्स, नेक्स्ट इज डेलीगेट्स, ओके,
डेलीगेट्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, हमने ऑलरेडी कवर्ड किया है डेलीगेट्स, बट उसका टुडे वी विल डू दी वन प्रैक्टिकल इन द कंसोल एप्लीकेशन में हम लोग उसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। थियरी हम लोगों ने देखा इन द प्रीवियस वन ऑफ द लेक्चर्स में, हमने डेलीगेट्स डिटेल्स में पढ़ा विद द प्रोग्राम्स के साथ, बट हम उसको रन नहीं किया, तो टुडे वी विल रन दिस डेलीगेट्स प्रोग्राम। Okay. In C sharp, delegate मतलब क्या? Delegate is reference to the method. Delegate is used to call the methods in the C sharp language. It works like function pointer in C or C++, but it is object oriented, secured, and type safe than function pointer. Okay. For static method, delegates encapsulate methods only, but for instance method, it encapsulate methods and instance both. Okay. The best use of delegate is to use an event. Okay. Internally, delegate declaration define a class which is derived class of system.delegates. ये हमने ऑलरेडी कवर किया, कहाँ से हम लोग उसको यूज करेंगे, कहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है डेलीगेट्स का जो डिफाइन है वो कौन से हेडर फाइल में है, system.delegates में। ओके, so what is the use of delegate? The delegate is used to reference the method or is used to call the different methods. मेथड्स को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेलीगेट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट द डेलीगेट्स, ठीक है। यस, और व्हाट आर द कंडीशन इन डेलीगेट्स में, क्या क्या कंडीशंस था जो आपको याद रखने बोला था मैंने, व्हिच आर द कंडीशंस। जब डेलीगेट मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था आपको ये चीजें याद रखना है, व्हिच आर व्हिच दोस कंडीशंस, कौन सा कंडीशंस है जो आपको याद रखना है एट द टाइम ऑफ डेलीगेट्स, जब बना रहे हो डेलीगेट्स का प्रोग्राम कर रहे हो तभी। चलो बताओ। डेलीगेट्स जब डिक्लेयर करते हो, डेलीगेट्स जब डिफाइन करते हो, तो क्या आपको याद रखना है? यस स्टूडेंट्स, आपको नहीं आंसर देना है कि नहीं याद है, कि बोलना नहीं है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर क्लास? नाउ आई एम फेड अप। याद नहीं है मैं। ओके, हाँ तो ऐसे बोला मैम हमको याद नहीं है, इतना बोलना मेरा कितना एनर्जी वेस्ट करते हो? हाँ, तो बोल दो ना मैम नहीं याद, एक्सप्लेन कर दो। हाँ ठीक है, चलो। डेलीगेट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ डेलीगेट्स? हम लोग फंक्शन को कॉल, मेथड्स को कॉल करने के लिए वी आर यूजिंग द डेलीगेट्स। ओके, डेलीगेट्स हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो कैसे उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब आपको प्रोग्राम करवाया था ये, तो मैंने बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर द डेलीगेट्स। ओके, डिक्लेयर द डेलीगेट्स कहाँ पे डिक्लेयर करोगे? आफ्टर द हेडर फाइल के नीचे, ठीक है। जो आपका हेडर फाइल है उसके नीचे यू विल डिक्लेयर द डेलीगेट्स, ठीक है। डेलीगेट्स डिक्लेयर कर दिया मतलब क्लास के बाहर यू हैव टू डिक्लेयर डेलीगेट्स, इन शॉर्ट क्लास आउट ऑफ द क्लास यू हैव टू डिक्लेयर द डेलीगेट्स। देन सेकंड, डेलीगेट्स का जो टाइप जो है, द टाइप एंड जो उसका जो पैरामीटर्स जो है, दैट शुड बी मैच विद द फंक्शन जिसको आपको कॉल करना है, वो फंक्शन के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है उसका डेटा टाइप्स एंड पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स, तो वो कॉल नहीं होगा, द एरर विल बी कम्स, ठीक है। तो ये दो चीजें यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट क्या है कि आपको उसको कहाँ पे डिक्लेयर करना है, प्लीज स्टूडेंट्स रिजॉइन करो, रिजॉइन करो, डॉट नेट में उसका प्रोग्राम करना है हमको, वी विल मेक कंसोल एप्लीकेशंस फॉर दिस। ओके, ओके, तो हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का डेलीगेट डिक्लेयर किया। व्हाट इज द नेम ऑफ डेलीगेट्स? कैलकुलेटर इज द नेम ऑफ द डेलीगेट, वन पैरामीटर वी हैव पास इंटीजर एंड का, कोई लॉजिक वगैरह नहीं लिखना है, जस्ट व्हाट इज द यूज ऑफ डेलीगेट टू कॉल दी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। और कौन से मेथड का कॉल कर, कौन से मेथड्स को कॉल करेगा वो, ठीक है, कि जिसका पैरामीटर एक पैरामीटर होगा, मतलब वन पैरामीटर इंटीजर टाइप का, ठीक है। कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का वन पैरामीटर होगा, वो मेथड्स विल बी कॉल्ड यूजिंग दिस डेलीगेट्स। देन एक जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं वैसे क्लास है पब्लिक क्लास डेलीगेट एग्जांपल, कोई क्लास का नेम है डेलीगेट एग्जांपल। देन एक मेथड डिक्लेयर किया है, सॉरी वेरिएबल इज डिक्लेयरिंग नंबर, ओके, दैट इज स्टैटिक, 100 इसका वैल्यू असाइन किया है। देन वन मेथड इज देयर,